Myself KL Thakur, and basically I'm engineer. I served in government job as executive engineer. Then I took VRS during 2012, and just after taking VRS, I contested first election from BJP ticket from Nalagarh Assembly constituency of Himachal Pradesh, and with the short time of 1.5 months, I got around 60% votes of the constituency, and for that 5 year, 12 to 17, I served the people of Nalagarh constituency, but during 2017 election, which I fought again on BJP ticket, I lost by a narrow margin of 1200 votes, and after losing election, I continued serving the public for the 5 year 2017 to 2022, and fortunately or unfortunately I couldn't get ticket during this 2022 election from BJP. Then I contested this election as an independent candidate, and I was elected with the huge margin of more than 13,000 votes, and the total votes to the Congress and BJP both are almost equal to my votes. I got 33,000 plus votes, and both the candidates of national parties like BJP plus Congress, they got 37,000. It means these are almost equal. So this is my political background, and basically I am engineer by profession. निर्वाचन क्षेत्र जो नालागढ़ है, इसकी लगभग 90,000 वोट्स है, और मैं इसके बारे में स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि ये ऐसी कंस्टिट्यूंसी है विच रिप्रेजेंट्स द इंडिया, बिकॉज constituency comprises the plain territory as well as the hill, combination of both, and there are Hindus majority, but a significant number of Sikhs and Muslim also. So I can say that this is the constituency which represents two picture of the India, and this is major part of the constituency is plain, and now upcoming as industrial area also, and people of my constituency are very progressive, and their language is mixed between Punjabi and Hindi, because we are at the border of Punjab. Now I am in Himachal, but the constituency is on border, so there the language that is mixed one. This is the opportunity to all MLAs, MLCs, and I am also one of them, and all will contribute here, and will meet each other from different parts, and culturally also will get opinion of other region also, and technically and how constituency can be developed will इसमें just इससे अपनी इंटरेक्शंस होगी तो विल बी बेनिफिटेड अ लॉट। नालागढ़ कंस्टिट्यूंसी जो है, जैसे मैंने बताया कि हिल और
प्लेन का, दोनों का कम्बिनेशन है टेरिटोरियल बेस से। तो काफ़ी काम करने के बाद व्हेन आई जॉइन पॉलिटिक्स बाय टेकिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट VRS ड्यूरिंग 2012, तो काफ़ी इरिगेशन के बारे में काफ़ी काम करने को था। वाटर सप्लाई की भी, वाटर स्केर्स एरिया भी था, एंड रोड नेटवर्क भी टू द सेटिस्फेक्शन नहीं था। तो हमने 12 से 17 तक MLA रहते भी काम किया दिन रात। तो काफ़ी हद तक अब रोड की कंडीशन द डे आई जॉइन पॉलिटिक्स और आज देखें हम तो बहुत ही बढ़िया रोड्स हैं अब। और चैलेंज तो अभी इंडिपेंडेंट इलेक्शन का था, जो जिस टाइम मौके पे टिकट नहीं मिला तो बड़ा भारी लोगों ने साथ दिया, एंड मैंने भी हिम्मत रखी। तो अब नाउ आई एम सर्विंग एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एंड सपोर्टिंग द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट इलेक्शन तो आई बात, जैसे मैंने बताया मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, तो मैंने VRS ली। सिर्फ 1.5 महीने में मैंने इलेक्शन लड़ा और जीता, बहुत अच्छे मार्जिन से उस टाइम भी। टोटल वोट्स टू द विनिंग कैंडिडेट जो थी, दैट वाज हाईएस्ट टू मी एट दैट टाइम ऑल्सो ड्यूरिंग 2012 इलेक्शन। तो बहुत लोगों ने साथ दिया, बिकॉज मैंने नौकरी करते हुए गवर्नमेंट सर्विस में भी आई रिमेन टच विद द पब्लिक एंड आई यूज टू गेट द देयर वर्क्स डन रेगुलरली। तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न कि they voted in my favor. Second, I lost by narrow margin. Third, जो recent election था around 6 months back, 2022, that I won with the huge margin. That is perhaps record of HP Assembly. कोई भी कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इतनी वोटों से आज तक नहीं जीता है हिमाचल असेंबली में। तो दैट इज़ द रिकॉर्ड। और फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन था जीता था, वो भी टोटल पोल्ड वोट्स टू द विनिंग कैंडिडेट, दैट वाज द हाईएस्ट एट दैट टाइम ऑल्सो। आई ऑलवेज रिमेन्ड विद द पब्लिक एंड रिजल्ट इज देयर। राजनीतिक आदर्श तो मुझे लगता है तो हमारी राजनीतिक आदर्श पब्लिक है, बिकॉज आई एम इंडिपेंडेंट। पहले बीजेपी से था, बट अब बीजेपी पहचान नहीं पाई। वैसे बाकी लाइफ में फैमिली का बड़ी सपोर्ट है, पर्टिकुलरली माई वाइफ एंड सन। दे ऑलवेज हेल्प मी, दे ऑलवेज असिस्टेड मी। नालागढ़ की जो प्रबुद्ध जनता, उसके साथ साथ परिवार का भी मैं आभारी हूँ। नालागढ़ की जनता ने बहुत बढ़िया फैसला जो किया, उसके लिए आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल। अपनी लाइफ तो अब लोगों में मिलकर कुछ टाइम अपनी फैमिली के लिए निकालते हैं। तो अब तो लाइफ बड़े बिजी कह सकता हूँ, बट अच्छा लगता है जब 100, 200, 300 लोगों से रोज़ मिलते हैं, उनके काम करते हैं और फैमिली को भी थोड़ा टाइम देते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि सभी को अगर समर्पण भाव से काम करें सभी नेता जो है, तो निश्चित रूप से हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी कंस्टिट्यूंसी को आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी युवा के बारे में, युवा आजकल हर जगह, इधर भी ऐसा होगा, बट हमारे पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पे नशे का बड़ा भारी प्रचलन हो गया है। तो उसके लिए युवा को तो बहुत ज़्यादा हमें प्यार की ज़रूरत है। उनको, युवाओं को घर में समय देना चाहिए, पेरेंट्स को, ताकि इधर उधर नहीं प्यार ना ढूंढें, घर में उनको अच्छा टाइम दें और उनको हम उनकी जो, क्योंकि आने वाला फ्यूचर युवा है हमारे। तो युवा जो आजकल ड्रग्स के इसमें ज़्यादा, केमिकल ड्रग्स में जो जा रहा है, उसके लिए समाज अकेले गवर्नमेंट नहीं कर सकती, इसके लिए समाज को, पेरेंट्स को, सबको मिलकर एक मिशनरी मोड से हम उनके लिए काम करना, ताकि वो आगे मतलब इसको नशे की रोकथाम हो सके। सबसे अच्छी विशेषता यह है कि आपके सामने बैठा हूँ, इंडिपेंडेंट लोगों ने जिता दिया। इसमें सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग वोट करते हैं
डेवलपमेंट के लिए वोट करते हैं, लोग पहचानते हैं। अब काफ़ी डेमोक्रेसी इंडिया की जो मैच्योर हो चुकी है और लोग आज ज़्यादा गुमराह नहीं होते हैं। अब तो लोग समझते, अच्छा बुरे में फ़र्क समझते हैं और डेमोक्रेसी जो मैच्योरिटी की तरफ जा रही है और भारतवर्ष दोबारा आगे बढ़ेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, सोने की चिड़िया जो कहते थे हम दोबारा बनेगा, ऐसा लगता है। जिसमें एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हाईएस्ट वोट से मैंने जीता। दोनों नेशनल जो पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस और बीजेपी, उनको बहुत बुरी तरह हराया। तो वो जनता के सहयोग से काम 5 साल लोगों ने किया। तो याद है, जिस टाइम हमें याद है जब टिकट कटा तो कैसे हमारे लोग सब इकट्ठे हो, कैसे रोए, कैसे मतलब उन्होंने फैसला किया कि आपको लड़ना पड़ेगा। तो उनके प्यार और उनके प्रेशर के आगे मैं झुका और इलेक्शन लड़ा और जीता। सबसे यादगार रहेगा। और पहला इलेक्शन भी जब 1 महीने एक गवर्नमेंट ऑफिसर था, इंजीनियर था मैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसको नौकरी से VRS लेकर इलेक्शन लड़ा। तो मेरे लिए बिल्कुल नया फील्ड था। सिर्फ 1.5 महीने का टाइम मिला था मुझे। उसमें भी लोगों ने बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाकर मुझे जिताया। वो भी यादगार है। दोनों इलेक्शन बीच वाला नैरो मार्जिन से रहा हूँ, तो वो उससे हमने सीखा है। उसके बाद लोगों में रहे और अभी इलेक्शन इंडिपेंडेंट भी जीत लिया हमने। पहले सब तो जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सब हैबिचुअल हो गए कि इस ढंग से कैसे मैनेज करना। वो भी हमारा बिल्कुल वो पार्ट एंड पार्सल बन गए हैं। वो अगर थोड़ा समय भी दें तो उसमें वो खुश हो जाते हैं और उसमें हम जो भी आपस में बातचीत डेलिब्रेशन करनी उसमें हो जाती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं हम कह सकते हम बहुत बिजी है, समय नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं है। और हम हर फील्ड में काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। सबसे बड़ी ताकत मेरा लगातार काम करना, ईमानदारी, डिवोशन और लोगों को के सामने सच्ची बात करना। वो ताकत है। तो लोग समझते हैं कि जो बोलेगा वो काम होगा। तो देन पीपल ट्रस्ट मी और उसका रिजल्ट है कि लोगों ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को हाईएस्ट मार्जिन से जिताया है। सच बोलना, लोगों के बीच में रहना, समर्पण भाव से काम करना। सार्वजनिक जीवन में तो यादगार पल एक तो यही था जब ये इलेक्शन जीता हमने, इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीता। और जिस दिन हमने नॉमिनेशन फाइल की इस इलेक्शन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उस टाइम लगभग 10,000 लोग उसमें आए थे। तो उस टाइम लोगों में बड़ा भारी जोश था। उस जोश को देखते हुए वो यादगार पल था। और उसके बाद इलेक्शन वोटिंग से 3 दिन पहले एक रैली हमारी हुई। वो हिमाचल की सबसे बड़ी रैली थी। लगभग 15-16 हज़ार लोग आए उसमें। उसी टाइम 3 दिन पहले हमें पता लग गया कि हम इलेक्शन जीत गए हैं। तो यादगार पल था, वो चीज़ें याद आती हैं। आज की पीढ़ी को तो हम तो कहते हैं बचपन में छोटे जब तो पढ़ाई की है तो पढ़ना चाहिए पूरा ध्यान लगाकर। उसके बाद जब वो ग्रेजुएशन कर लें, ऐसा कर लें, फिर उनको फील्ड चूज़ करना चाहिए किस फील्ड में जाना है। अगर राजनीति में जाना है तो ये नहीं पैदा होते छोटे छोटे राजनीति में चले जाते हैं। तो पहले पढ़ाई पूरी करें, उसका फील्ड चूज़ करें। व्यवसाय करना है, जॉब का नौकरी करनी है, सरकारी प्राइवेट, या पॉलिटिक्स करनी है, समाज सेवा करनी है, तो उसमें करें, डिवोशन से करें वो राजनीति करनी है। क्योंकि सच्चाई पे बात बनेगी। आने वाला समय जो है सिर्फ झूठे वादे करके, ऐसे गुमराह करके लोग मानने वाले नहीं हैं। सच्चे समर्पण भाव से काम करना पड़ेगा। अगर उनमें ऐसा है तभी राजनीति में आए, अदरवाइज़ वो अलग अलग फील्ड से वो चूज़ करें।